वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam. Today we are going to start with our new chapter, chapter number 2, Maths, Parallel Line and Transversal. Page number 7. Open your book, show me your book, show me your maths book. Everybody has maths book. Show me your maths book. Come on, show me, show me your maths book. You have covered it. I can't understand, Zainab. So see, the name of the lesson is parallel line and transversal. So what do you mean by parallel line? See, in your textbook there are two figures. Which one is parallel line? Upper one or lower one? This one is parallel line or this one? Which one? Upper one or lower one? Which is parallel line? मिस ऊपर वाली हाँ, क्यों ऊपर वाली है? क्यों ऊपर वाली? अच्छा, तो क्यों नीचे वाली है? Come on, तुम समझ के बोल रहे हो क्या ऐसे ही तुक्का मार रहे हो? That I can catch you. अभी इसको आगे लेंगे तो ये लाइन काट देगी ऊपर जो पहले नंबर की। बोलो, very good, Sahil. मिस एक मिनट। Whatever you are saying is right. See, the upper line is this way. मिस ये देखो, ये इधर से तो कट जाएगी। हाँ, very good, very good. और ये जाएगी। हाँ, very good. Clap for Sahil. Clap for Sahil. Clap for Sahil. Very good. सही है साहिल का कि this is not parallel line. This is not parallel line. हाँ? Because the distance between two lines is different. The distance between two line is different. यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे कम दिख रहा है आप लोगों को. Distance between two line is different. When the distance between two line varies, then it is not parallel line. And when the distance between two line is same, हर जगह पर सेम है. So this line अगर मैं इसको विरार से चर्चगेट तक भी लेकर जाऊं तो ये एक दूसरे को कट नहीं करेगी, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी. उसको बोला जाता है इंटरसेक्ट. हाँ साहिल, जो तुमने बोला ना काटेगी, तो उसको बोला जाता है इंटरसेक्ट. ओके, सो दीज टू लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट. So the line which does not intersect are known as parallel line. The line which does not intersect, सब जगह पर एक जैसी रहती है, रेलवे की पटरी जैसी है. रेलवे की पटरी भी कहीं कहीं जाके काटती है एक दूसरे को, लेकिन जब ट्रेन चलती है वो रेलवे की पटरी जो है वो जहां पर देखेंगे अगर आप लोग, तो दिस इज पैरेलल लाइन. सो एक चीज आपको दिमाग में बिठाना है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज इक्वल एवरीवेयर. द डिस्टेंस, मैं बार बार बोल रही हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज इक्वल एवरीवेयर, देन दीज टू लाइन आर पैरेलल लाइन. ओके, सो पैरेलल लाइन का समझ में आ गया. पैरेलल लाइन, और दिस इज नॉट पैरेलल लाइन, सो दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन. ठीक है, these are intersecting line, because इसको मैं अगर आगे बढ़ाऊंगी ऐसे अगर कहीं पर, तो ये कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, कट करेगी. So it is intersecting here. It is intersecting here, and this is known as point of intersection. ठीक है, this is known as point of intersection. The point where two lines intersect is known as point of intersection. Okay, so here in this figure, can you tell me which is the point of intersection in this figure? Which is the point of intersection where lines are coming and intersecting each other? Point का नाम दिया हुआ है. कौन से पॉइंट पे लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट का नाम बताओ, कौन बताएगा, जल्दी बताओ.
दिखाई दे रहा है ना आपको, ये नाम L है, ये M है, ये N है, ये लाइन का नाम है, ये नाम A है, ये नाम B है। तो कहाँ पर आके लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है? कौन से पॉइंट पे कर रही है? ए बी पे। पॉइंट A एंड पॉइंट B, पॉइंट A एंड पॉइंट B। वेरी गुड, समझा अभी अच्छे से? एकदम ध्यान में बैठा, क्लियरली? Okay. Yes, miss. So point A and Yes, miss. point B are point of intersection. Point A is point of intersection of line M and L. ध्यान से सुनो, A point is point of intersection of line M and line L and line M. Correct? समझा? ध्यान में बैठा? लाइन L और लाइन Yes, M miss. का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? A। और B इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन N एंड लाइन L। ये लाइन L ही है ना, नीचे तक आ रही है। सो B इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन N एंड लाइन L। हाँ, देखो, लाइन M एंड लाइन L। ओके, सो इस तरह से दोनों भी चीजें आपको क्लियर हुई अच्छी तरह? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. ओके, Yes, तो miss. यहाँ पर आपको मैंने अभी बताया व्हाट इज पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन यानी द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज इक्वल एवरीवेयर इट इज इक्वल, देन इट इज नोन एज पैरेलल लाइन। And when the distance between two line is not equal, then it is intersecting line. And the point where these two lines intersect is known as point of intersection. So here we have seen the point of intersection of line L and M is A. Point of intersection of line L and line M is A. Similarly, point of intersection of line N and line L is point B. Clear? Clear? Clear हुआ सबको? Yes, miss. Yes, miss. Okay. अब यहाँ पर आप लोगों को दूसरी और एक चीज बतानी है। आपको दिख रहा होगा कि ये लाइन M और लाइन L, N जो है दोनों लाइन, उसको एक ये वाली लाइन आके कट कर रही है खड़े से। These are horizontal line and this is vertical line. Okay? These are horizontal line and this is vertical line. तो ये जो vertical line L है, ये दोनों लाइन को आके कट कर रही है। ओके? तो इसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल। आपके लेसन का नाम है ना पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। तो ये जो लाइन होती है जो दो लाइन को आके कट करती है, एक लाइन जो दो लाइन को या दो से ज्यादा लाइन को आके कट करती है, उसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल। उसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ फरहान? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. फरहान? Yes, miss. So this is a transversal and these are intersecting line. Similarly, if I draw line this way, then this will be the transversal and this will be parallel line. So transversal intersecting line का भी हो सकता है और transversal parallel line का भी हो सकता है। Got it? समझ में आया अच्छे से? तो ट्रांसवर्सल दोनों में हो सकता है, इंटरसेक्टिंग लाइन में भी हो सकता है और पैरेलल लाइन का भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। हाँ, सो एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल अब हम लोग देखते हैं अगले इसमें। एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये आपको 10वीं तक याद रखना है, बहुत ध्यान से देखेंगे।
एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। अब ये दो लाइन है, दिस इज लाइन M एंड दिस इज लाइन N। हर बार लाइन M और N नहीं होगा, हाँ कुछ भी हो सकता है लाइन का नाम। एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, दिस इज लाइन L। ओके, सो इससे बनने वाले जो एंगल्स हैं वो हम देखेंगे अभी। द एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल। अब कितने एंगल बन रहे हैं वो हम काउंट करेंगे। हाँ, एंगल नंबर 1 ये वाला एंगल बन रहा है, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4। यानी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के वहां कितने एंगल बन रहे हैं? 4। 4. राइट, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था A और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है B। राइट, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के वहां पर कितने एंगल बन रहे हैं? 1, 2, 3 एंड 4। सो 4 एंगल्स बन रहे हैं एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। फरहान, at one point of intersection we are getting 4 points. Okay, now on other point of intersection how many angles we will get? यहाँ पे भी कितने एंगल्स मिलेंगे? How many angles? 4. 4. Very good. 4. So I will number it 5, 6, 7 and 8. Okay, 5, 6, 7, 8. So when two parallel lines or two intersecting lines are intersected by a transversal, this is a transversal, how many angles we get? We get 8 angles. We get 8 angles. When two lines are intersected by a transversal, we get 8 angles. Okay? अब ये 8 एंगल्स हम लोगों को मिल रहे हैं। ये इतना पूरा ध्यान में बैठा? इतना पूरा Yes, ध्यान में miss. बैठा? हाँ, Yes, miss. पैरेलल लाइन में अगर ट्रांसवर्सल आता है तो भी 8 एंगल्स मिलते हैं, और मैंने अगर इंटरसेक्टिंग लाइन बनाई और उसमें मैंने एक ट्रांसवर्सल बनाया तो उसमें भी हमको 8 एंगल्स मिलेंगे। इसमें भी हमको 8 एंगल्स मिलेंगे। सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So either it is parallel line or it is intersecting line. When it is intersected by a transversal, we get 8 angles. हमको 8 एंगल्स मिलते हैं। We get हमको मिलते हैं how many angles? 8 angles. How many angles? How many angles? 8 angle. 8 angles. Girls. Okay? 8. So ये आप लोगों के दिमाग में एकदम फिट हो जानी चाहिए बात। एकदम दिमाग में इसको सेव करके रख दो, लॉक करके रख दो। कर दिया सेव? हाँ, इसको आपको 10वीं 12वीं तक याद रखना है। ओके, नाउ वी विल से ये जो एंगल्स 8 एंगल्स बन रहे हैं ना, उसमें अलग अलग टाइप के एंगल्स हैं। नाउ वी विल से how many types of angle we can have by intersecting two parallel lines. First is corresponding angle. Corresponding angle. First one is corresponding angles. Okay. So what is corresponding angles? Now we'll see. When two lines are intersected by a transversal, we get corresponding angles. अब वो corresponding angles कौन से हैं वो हम लोग देखते हैं। Corresponding angles कौन से हैं वो देखते हैं। This is our line L, this is M and this is N. अब हमने नंबर डाले हैं ना, वो नंबर के हिसाब से ही हम लोग देखेंगे। See these numbers.
Okay. So angle number 2 is corresponding to angle number 6. Angle number 2 is corresponding to angle number 6. Student, the green sketch there. Green sketch. Angle number 2 is corresponding to angle number 6. Now we'll say angle number 1 is corresponding to angle number 5. Angle number 1 is corresponding to angle number 5. Okay? See, I am using different colors. Angle number 1 is corresponding to angle number 5. Similarly, angle number 3, थोड़ा सोच के बताओ एंगल नंबर 3 किसके करस्पॉन्डिंग होगा? कोई सोच सकता है? देखो मैंने क्या किया, ये 2 को करस्पॉन्डिंग किया, उसको एक को छोड़ा, उसके अगले पे जंप मारा, बराबर? 2 करस्पॉन्डिंग टू 6. 7. वेरी गुड, वेरी गुड. 3 करस्पॉन्डिंग टू 7. वेरी गुड, वेरी गुड. किसने बोला? फरहान. वेरी गुड फरहान. मैंने बोला. That's for इधर concentrate करो, हाँ? Then you will understand. So angle 3 is corresponding to angle number 7. Similarly, अभी कौन सा एंगल बचा? एंगल नंबर 4. 4 और 8. Yes, angle number 4 will corresponding to angle number 8. तो आप लोगों को corresponding एंगल समझ में आ रहे हैं सब लोगों को? अब मैं आप लोगों को यहाँ पर अलग अलग, हाँ, अब मैं आपको यहाँ पे अलग अलग फिगर बना के देती हूँ तो आपको और भी क्लियर विजुअलाइजेशन होगा. ठीक है? सी देयर आर हाउ मेनी एंगल्स? एक ये जोड़ी हो गई, 1 पेयर, 2 with 6, एक पैर हो गया. देन अदर पैर इज 1 with 5, 1 with 5. Then next pair is 3 with 7 and last pair is 4 with 8. 4 with 8. So how many pairs we are getting? 1, 2, 3, 4. Pair यानी जोड़ी. Pair यानी जोड़ी. So how many pair we are getting? 4 pairs we are getting. 4 pairs. 4 pairs of angle, right? Now I will draw separately over here and you have to draw with me. See, first one is this. Angle number 2 with 6. Okay, angle number 2 with 6 means this angle and this angle. See, I am making it dark. मैं इसको डार्क कर रही हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आने के लिए. तो इसमें इंग्लिश का कौन सा अल्फाबेट बन रहा है वो मुझे बताएंगे. हाँ, ये एक हो गया. ठीक है? नंबर 2 इज एंगल नंबर 1 and 5. एंगल नंबर 1 and 5. एंगल नंबर 1 and 5. ओके, तो यहाँ पर ये वाला एंगल, ये this angle and this angle. Okay, this angle and this angle. अब ध्यान से देखना इंग्लिश का कौन सा अल्फाबेट बन रहा है. अभी भी आप लोगों को नहीं आया? अभी आपको एकदम साफ दिखेगा. मिस एल और एफ. एल और एफ. एल नहीं एफ. ओनली एफ. वेरी गुड, वेरी गुड. अब यहाँ पे देखो, दिस इज एंगल नंबर 3 एंड एंगल नंबर 7. तो इसको मैं करूंगी ना तो एकदम आपको क्लियर दिखाई देगा. अब एकदम क्लियर दिख रहा है. अब एकदम मिस एफ बन रहा है. ये उल्टा एफ है, ये भी उल्टा एफ है, ये सीधा एफ है, ये सीधा एफ है. और ये वाला भी एक बनेगा इस तरफ वाला एफ. हाँ. अब आया ध्यान में? यस मिस.
Yes, miss. देखो मैं डार्क करती हूँ तो आप लोगों को और भी अच्छे से ध्यान में आ जाएगा. दिस एंगल एंड दिस एंगल, एंगल नंबर 4 एंड 8 है ना, ये भी है. दिख रहा है सबको? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Yes, तो miss. ये आप फिगर्स आपके पास में बना के रखो जल्दी जल्दी फास्ट. ये कौन से एंगल्स हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. मेरे साथ में ही बनाया करो तो रुकना नहीं पड़ेगा. ओके, सो दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. क्लियर विजन क्लियर हुआ आपका? एकदम एकदम ध्यान में बैठ गई बात? Yes, miss. ओके, सो Yes, दिस miss. इज करस्पॉन्डिंग एंगल. करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपकी किताब में यहाँ दिया हुआ है, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिख रहा है किताब में. यहाँ पर मेरी उंगली से मैं बता रही, देखो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग Yes, miss. Yes, miss. दिख रहा है. हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स किताब में हाँ. दिया हुआ है. ठीक है, इस तरह का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. आप लोग आपकी नोटबुक में जैसे मैंने कलरिंग की हूँ, कलर से बताई हूँ, वैसे ही आप कलर से ही बताओगे. आपके नोटबुक में भी आप कलर से बताओगे. ये मैंने पहले एक टोटल फिगर बनाई और फिर उसमें से मैंने एक एक उठा के यहाँ पर लिया, एक एक उठा के इधर लिया. बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा और कभी कंफ्यूजन नहीं होगा. क्लियर हुआ करस्पॉन्डिंग एंगल्स सबको? Yes, miss. Yes, miss. Miss. ओके, अब हम लोग अगले देखते हैं इंटीरियर एंगल्स. नेक्स्ट इज इंटीरियर एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल्स की एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गई. करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं, ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो मेजर में इक्वल होते हैं. हाँ, दे आर इक्वल इन मेजर. इक्वल इन मेजर यानी अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल भी 60 डिग्री का ही होगा. आई बात समझ में? ये एंगल 60 डिग्री का है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम उतने ही डिग्री का होगा. उसी तरह से ये एंगल अगर समझो 120 डिग्री का है, ये वाला एंगल अगर 120 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 120 डिग्री का ही होगा. वो हमेशा सेम होते हैं, सेम मेजर के होते हैं. Corresponding angles are of same measure or equal measure. उसी तरह से 120 डिग्री का ये, तो ये भी 120 डिग्री का. ये 60 डिग्री का तो ये भी 60 डिग्री का. डिग्री चेंज हो जाएगी. हर बार 60 और 120 का नहीं होगा, अलग अलग डिग्री के हो सकते हैं. तो ये बात भी दिमाग में बैठ गई अच्छी तरह? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. कोई Yes, कंफ्यूजन? miss. कोई Yes, कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है? शाहिद, शाहिद कोई कंफ्यूजन है? ओके, हामिद, हामिद, ओके. आज फैजान नहीं आया, ठीक है, देखते हैं. अब यहाँ ओके, नो प्रॉब्लम. तो यहाँ पर जो है वो इस तरह से आप लोगों को ये करस्पॉन्डिंग एंगल अभी समझ में आ गए. नेक्स्ट
हम लोग देखते हैं अब इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स के लिए हम लोग देखेंगे इंटीरियर एंगल, उसी तरह से हम लोग लाइन बनाएंगे, 2 लाइन। अब उसमें हम लोग जो है वो इंटीरियर एंगल्स देखेंगे। जैसे हमने अभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखे, वैसे हम लोग अभी इंटीरियर एंगल्स देखेंगे। See, these 2 lines are intersecting by a transversal. Now we'll see interior angle. This is line M, this is line N, and this is line L. Okay. Now we'll see interior angles. अब इसमें भी वही 8 एंगल्स बन रहे हैं, राइट? तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? ये जो एंगल है ये हमारा कौन सा था? एंगल नंबर, ये वाला हमारा एंगल नंबर कौन सा था? एंगल नंबर ये वाला 3 था। एंगल नंबर 3 एंड एंगल नंबर 6। 7 एंगल नंबर 3 एंड एंगल नंबर 6, ये दो जो है वो इंटीरियर एंगल है, ठीक है? एंगल नंबर 3 एंड एंगल नंबर 6 इंटीरियर एंगल है। उसी तरह से एंगल नंबर 4 एंड एंगल नंबर 5, ये इंटीरियर एंगल्स है। अब ये इंटीरियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये देखो ये 2 लाइन के अंदर है। क्यों इनको इंटीरियर बोलते हैं? क्योंकि ये 2 लाइन के अंदर रहते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है इंटीरियर एंगल, ठीक है? अब मैं यहाँ पे अलग से बनाती हूँ फिगर, तो आप लोगों को दिखाई देगा इसमें भी इंग्लिश का कौन सा अल्फाबेट दिखाई दे रहा है। और कितने इंटीरियर एंगल्स के पैर कितने हो गए? देखो यहाँ पर 3 के साथ में 6, 3 के साथ में 6 एक पैर है, और उसके बाद 4 के साथ में 5 एक पैर है। 4 के साथ 5, यानी कितने पैर हो गए? 1 2 तो कितने पैर हो गए? 2 पैर। 2 पैर, 2 जोड़ी है। इंटीरियर एंगल की कितनी जोड़ी है? 2 जोड़ी है, 2 है ना? तो इंटीरियर एंगल्स की 2 जोड़ी है, 2 पैर है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखने जाते हैं अलग अलग से, तो आपको दिखाई देगा कौन सा इंग्लिश का अल्फाबेट बनता है। देखो यहाँ पर अब मैं ये बनाती हूँ इंटीरियर एंगल्स। कौन सा अल्फाबेट है ये? सी, वेरी गुड। किसने बोला सी? है ना, ये उल्टा सी बन गया। अब यहाँ पर हम लोग बनाते हैं इस तरफ से, सब दिखाई देगा। दिख रहा है अभी? एकदम साफ दिख रहा है? यस मिस। ओके, यस मिस। हाँ, तो यहाँ पर अभी ये बन गया सीधा सी। पहले उल्टा सी बना था, अभी ये सीधा सी बन गया ना, है कि नहीं? ये है एंगल नंबर 3 और ये है एंगल नंबर 6। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों का ये सीधा सी बन गया, सीधा सी। सो यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स के कितने पैर बन रहे हैं? ओनली 2 पैर। कितनी जोड़ी बन रही है? 2 ध्यान में बैठा अच्छे से, 2 पैर। यस मिस। इंटीरियर एंगल्स के जो प्लस होता है ना, वो हमेशा 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल का दोनों का अगर हम लोग प्लस करेंगे तो 180 डिग्री होता है। ओके, सो वो लोगों का 180 डिग्री जो है वो प्लस होता है। क्यों? देखो अभी यहाँ पर हमने जो बताए थे, एक एंगल हमारा था 60 डिग्री का और एक एंगल था 120 डिग्री का, बराबर? 60 डिग्री और 120 डिग्री। देखो ये वाला एंगल हम लोगों का था 120 डिग्री का, और ये वाला एंगल हमारा अंदर वाला है 60 डिग्री का। तो 120 और 60 कितने होंगे? 180 होते हैं ना। 120 और 60 कितने होंगे? 180 होते हैं कि नहीं? 180। हाँ। हाँ, तो ये वाला एंगल अगर समझो 120 डिग्री का है और ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। लिखो ये भी वहां पर
एक एंगल तुम्हारा 120 डिग्री का है तो दूसरा 60 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि दोनों का प्लस कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। हाँ, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री का, ऊपर वाला एंगल 60 डिग्री का और नीचे वाला 120 डिग्री। तो इन दोनों का प्लस भी कितना होगा, 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल्स आर their plus is 180 डिग्री। क्लियर हुआ? Yes, miss. Yes, miss. अब टेक्स्ट बुक में देखेंगे आप लोग थोड़ी देर। टेक्स्ट बुक में आपकी ये जो लाइन दी हुई है ना, इसको अंडरलाइन करेंगे और इसको आपको याद करना है। If a line intersects given two lines in two distinct points, then that line is called as a transversal of those two lines. इस लाइन को आपको याद करना है, ठीक है? अब पेज टर्न करेंगे आप लोग। टेक्स्ट बुक का पेज टर्न किया आप लोगों ने। नेक्स्ट एंगल्स, हाँ, ये इंटीरियर एंगल अच्छे से समझ में आया। हमने दो एंगल्स देखे, एक तो Yes, miss. हाँ. alternate corresponding angles or interior angles. Okay, now next we'll see alternate angles. Next we will see alternate angles. Alternate angles. Alternate किसको बोला जाता है? एक इधर तो एक उधर, एक ये तो एक छोड़ के एक, उसको बोला जाता है alternate। ठीक है? तो alternate angles कैसे होते हैं अब देखेंगे हम लोग। यहाँ पर एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 5, देखो एक एंगल इस तरफ का और एक एंगल इस तरफ का, ठीक है? एक एंगल इस तरफ का और एक एंगल इस तरफ का। तो ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट एंगल। एक ये हो गए और एक दूसरी जोड़ी हम लोग देखते हैं। एंगल नंबर 4 एंड एंगल नंबर 6, ठीक है? एंगल नंबर 4 एंड एंगल नंबर 6। अब यहाँ पे भी कितने पैर बने, देखो कितने पैर बने। एक है एंगल नंबर 3 विथ एंगल नंबर 5, वेरी गुड। और दूसरा है एंगल नंबर 4 एंड एंगल नंबर 6। कितने पैर बने? 2 पैर। 2 पैर्स है ना, 2 पैर्स बन गए। ओके, सो ये जो है वो एंगल नंबर ऑल्टरनेट एंगल्स जो है वो 2 पैर्स हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को अलग फिगर बना के बताती हूँ, तो इसमें कौन सा इंग्लिश का अल्फाबेट दिखता है वो आपको दिखाई देगा। देखो एक है एंगल नंबर ये 4 और एंगल नंबर 6। अब मैं डार्क करती हूँ। हाँ,
कौन सा अल्फाबेट? वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सा अल्फाबेट बन रहा है? जेड। ऑल्टरनेट एंगल्स, ओके। और ये ऑल्टरनेट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल इन मेजर होते हैं। यानी ये एंगल अगर 60 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का ही होगा। दोनों सेम टू सेम मेजर के, दोनों सेम टू सेम मेजर के, ठीक है। अब दूसरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी दिखेगा आप लोगों को इंग्लिश का अल्फाबेट। ये भी वही बनेगा। कौन सा अल्फाबेट बताया अभी आपने? Z. यहाँ सीधा जेड बना, यहाँ उल्टा जेड बना। दिख रहा है आप लोगों को? यस मिस। तो ये है एंगल नंबर 3 और ये है एंगल नंबर 5। देखेंगे अभी यहाँ पर आप लोगों को ये जो एंगल हमने दिखाया है यहाँ पे, ये अगर 120 डिग्री का है, ये वाला एंगल 120 डिग्री का है, तो ये एंगल भी बनेगा 120 डिग्री का ही। दोनों के मेजर सेम टू सेम होते हैं। एकदम ध्यान में बैठ गए तीनों भी एंगल्स, तीनों टाइप ऑफ एंगल आपके ध्यान में बैठ गए? यस मिस। एकदम अच्छे तरीके से, एकदम यस मिस। वेरी गुड। एक बार फिर से रिवाइज करके देखेंगे हम लोग। यस मिस। पहला हम लोगों ने कौन सा देखे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बराबर। पहले हमने कौन से देखे? करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। निकालो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। कहाँ गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स? सबसे पहले हम लोगों ने देखे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक बार ध्यान से देख लो तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कैसे होते हैं? अलग अलग कलर से हमने दिखाए हुए यहाँ पर, अलग अलग कलर से देखेंगे आप लोग। और कितने पेयर्स हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के? कितने पेयर है? 4 पेयर्स। एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, है ना। ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का है, ये 120 डिग्री का है तो ये भी 120 डिग्री का ही है, ठीक। तो इस तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो उतने डिग्री के आप लोगों को समझ में आ गए। अब हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 करस्पॉन्डिंग एंगल्स आ गए समझ में। उसके बाद हमने देखा इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स कैसे हैं? ये दो लाइन के बीच में है, इसीलिए उनको बोला जाता है इंटीरियर एंगल्स, ओके। ये दो लाइन के बीच में है इसीलिए उनको बोला जाता है इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स जो है उसका आपको याद रखना है कि दोनों का प्लस जो है वो 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल्स का जो है दोनों का प्लस 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट हमने देखा ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एंगल्स में हमने ये देखा, ऑल्टरनेट एंगल्स के भी कितने पेयर हैं? 2 पेयर्स हैं, 2 पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। और उसमें कौन सा फिगर दिख रहा है हमको? Z। अब तीनों हम लोग देखते हैं, सब तीनों में कौन कौन सी फिगर दिखाई देती है हमको। पहले हमने देखे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स में हम लोगों को कौन सा अल्फाबेट दिखाई दिया था? F। कौन सा अल्फाबेट दिखाई दिया था? F। इंटीरियर एंगल में हमको कौन सा अल्फाबेट दिखाई दिया था? C। और ऑल्टरनेट एंगल्स में हमको कौन सा अल्फाबेट दिखाई दिया? Z।
ठीक है, तो ये F बनाने के बाद में भी आप लोग यहाँ पर और यहाँ पर एंगल बताएंगे। F बनाने के बाद में आप यहाँ पर और यहाँ पर एंगल बताओ। C बताने के बाद में आप लोग यहाँ पर और यहाँ पर एंगल बताओ। म्यूट करो। किसी के घर में अगर आवाज आती है तो उनको पता लगता है तो फौरन म्यूट कर लिया करो, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एंगल बताया। अब Z बताने के बाद में भी आप लोग यहाँ पर एंगल बताओ। तो आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा ना कि आप लोग कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे ये तीनों टाइप ऑफ एंगल। तीनों टाइप ऑफ एंगल देखो एक साथ दिख रहे हैं आप लोगों को? दिख रहे हैं? ओके, ठीक है। तो ऑल दिस 3 टाइप ऑफ एंगल्स हम लोगों ने देखे। अब हम लोग आते हैं हमारी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज नंबर 2.1, पेज नंबर 8 पर। 8 पर। पेज नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 2.1। 2.1 पेज नंबर 8। ओके, अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे एक फिगर बनी हुई है। आवाज नहीं आ रही है। क्यों, प्रॉब्लम क्यों है आवाज का? किसको नहीं आ रही आवाज? बाकी लोगों को आ रही है ना? यस मिस, आवाज आ रही यस है। मिस, आवाज आ रही है। ओके, तो तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम होगा, जरा उसको देख लो, ठीक है। अब यहाँ पर एक फिगर बनी हुई है। यहाँ पर आपकी किताब में आप लोगों को जो दिख रही है वो मैं यहाँ पर बना रही हूँ। ओके, पेज नंबर 8 पर एक्सरसाइज नंबर 2.1। यहाँ पर मैंने नंबर डाले थे ना 1 2 3 4। यहाँ पर उन्होंने लिखा है P Q R S, है ना। फिर लिखा है यहाँ पे X Y W X Y और Z। W X Y Z, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने अल्फाबेट से बताया हुआ है। हम लोगों ने अभी नंबर से बताया था, इन लोगों ने अल्फाबेट से बताया है। अब मुझे फटाफट जवाब देंगे, फटाफट सोच कर जवाब देंगे, फटाफट। हाँ, सब रेडी है? एवरीबॉडी इज रेडी? हाँ, मेरी साहिल, साहिल कहाँ है? साहिल कहाँ गया? साहिल और वो हामिद, साहिल और हामिद। साहिल 78, हामिद 70। ओके, अब मुझे जवाब देंगे यहाँ पे फटाफट। In the adjoining figure, each angle is shown by a letter. Fill in the boxes with the help of figure. Corresponding angles हमको बताने। हाँ, corresponding angles हम लोगों के corresponding angles याद है ना? Corresponding angles, हाँ, यस मिस। corresponding angles ये वाली। अब corresponding angles आपको बताने हैं। एंगल P का corresponding एंगल कौन सा है? जल्दी बताओ। मिस एक्स। एंगल P का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? P इधर है। Z। सोच कर बताओ ना अरबिया, जरा देखो ध्यान से। W किसने बोला? W किसने बोला? आयशा, वेरी गुड। आयशा के लिए क्लैप करेंगे। आयशा, सोच कर बोलो। हाँ, सो P का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? W। P का करस्पॉन्डिंग एंगल है W। ओके, यस मिस। P का एंगल P एंड लिखेंगे एंगल W, ऐसा लिखेंगे बॉक्स के अंदर। ओके, नाउ सेकंड, एंगल Q का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? एंगल वेरी गुड। सो एंगल Q एंड एंगल X। अब ध्यान में बैठा। तीसरा एंगल R एंड एंगल
Y. Y. कौन सा एंगल Y। चौथा एंगल S और S के साथ कौन सा एंगल Z। बिल्कुल ध्यान में बैठा अभी अरबिया ध्यान में बैठा, अंजुम ध्यान में बैठा। हाँ, ध्यान देकर बात जवाब देना का। हाँ, अगला जो है वो ये हमारे थे करस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम लोग देखते हैं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल में जल्दी बताओ, देखो दो ही पैर है, करस्पॉन्डिंग एंगल के 4 पैर थे ना, इंटीरियर एंगल के 2 ही पैर है। एंगल एस के साथ में इंटीरियर एंगल कौन सा है? रुको जरा 1 मिनट। इंटीरियर एंगल हम लोग देखते हैं, इंटीरियर एंगल ये वाले बताओ जल्दी से। एंगल एस का इंटीरियर एंगल कौन सा है? W. वेरी गुड, W है। एंगल एस का इंटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल W है ना। W. हाँ, ऐसा बन रहा है ना, एंगल एस और W ऐसा है। ओके, ऐसा। दूसरे कौन से जल्दी बताओ? एंगल उसने उसी को उल्टा किया है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऐसा है नहीं, यहाँ पे आप लोग सही कर लो, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो। वहाँ पे W की जगह पे आप लोग R लिखो। R क्या लिखेंगे? R कर दो, ठीक है। R का X आएगा। हाँ, तो R का क्या जाएगा? X। एंगल R का एंगल X, ठीक है, हो गया। अब यस मिस। अब ये दूसरी फिगर है, नीचे की दूसरी तस्वीर को देखेंगे ध्यान से। इसमें आपको तीनों टाइप के एंगल बताने हैं। देखो, इंटीरियर एंगल्स भी बताने हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बताने हैं और अल्टरनेट एंगल्स भी बताने हैं। ये अल्टरनेट एंगल्स है, ये करस्पॉन्डिंग है और ये इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर कैसी है? देखो, आड़ी है, ऐसी है ना, बराबर। काय बोलले दोघांनी? I know. हो ना, I know first one. देखो यहाँ पे नाम लिख रही हूँ मैं, A, B, C और ये D, E, F, G, H। अब इसको सॉल्व करने का तरीका कैसा करेंगे आप लोग? जैसा ये मैंने यहाँ पर आपको बताई ना, ये तरीके से आप लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तरीके से आप जो है वो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको अल्टरनेट एंगल्स बनाने हैं, तो इस तरह से आप लोग जो है वो ABCD वाली फिगर यहाँ ऊपर बनाई आपने। अब यहाँ पर आप लिखोगे अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स देखो, इस फिगर को, अगर इस फिगर को मैं ऐसा कर देती हूँ, इस फिगर को मैंने ऐसा कर दिया, हाँ, तो अल्टरनेट एंगल्स देखो कौन कौन से बन रहे हैं। ये 6 इधर है तो 4 इधर है। ऐसा कौन सा है इसमें, नाम बताओ। ये वाला एंगल इसमें कौन सा है? ये जहाँ 6 है वहां पर ये इसमें कौन सा एंगल है? C. वेरी गुड, कौन सा है? C, ये वाला एंगल है ना, C वाला एंगल। और C का अल्टरनेट एंगल ये है 4, तो वहाँ कौन सा एंगल है? ये और ये। A. वेरी गुड, ये A है, ये A है अरबिया, ये A है, ये क्या है? E. सोच के देख कर बताओ। ये C है, इसका अल्टरनेट एंगल्स कौन सा होगा? ये E होगा। E. समझ में आया?
सी का ऑल्टरनेट एंगल ई हो जाएगा। हाँ, ऐसे अलग अलग कलर से बताना। फिर दूसरा कौन सा है ऑल्टरनेट एंगल्स यहाँ पर, जैसे 5 है, 5 के जैसा यहाँ पर क्या है ये बी, क्या है ये बी, बी उसका ऑल्टरनेट एंगल्स ये, तो कौन सा है वो, बोलो अंजुम, सही है एच, कौन सा है एच, कौन सा है एच, एच देखो एक बात याद रखो, ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है, आपको लाइन के बाहर नहीं जाना है, ये दो लाइन के अंदर, ये दो लाइन के अंदर। जी कैसे हो गया, जो जी लाइन के बाहर जा रहा है ना, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, बी का ऑल्टरनेट एंगल एच, बी का ऑल्टरनेट एंगल एच और सी का ऑल्टरनेट एंगल ई। ठीक है, तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हम लोग लिखेंगे एंगल सी एंड एंगल ई, ये एक जोड़ी हो गई। दूसरा लिखेंगे एंगल बी एंड बात कर एंगल एच, एंगल बी एंड एंगल एच। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरी जोड़ी हो गई। ओके, तो ये हो गए हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स, ये एक हमने बता दिया है ऑल्टरनेट एंगल्स। अगला हमको क्या बताना है, नेक्स्ट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स, नेक्स्ट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और उसके लिए हम लोग अगली फिगर बनाएंगे। ठीक है, उसको आप लोग अलग पेज पे करेंगे ऐसे, फिर से आप वो फिगर बनाएंगे, आपकी जो किताब में फिगर है वो बनाएंगे। किताब में जो फिगर है वो बनाएंगे। यहाँ पर एंगल ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब आपको बनाने हैं कौन से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको बनाने हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के कितने पैर होते हैं, कितनी जोड़ी है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, फोर पैर। वेरी गुड, फोर पैर्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, ये है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ, तो जल्दी जल्दी इसमें कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, चलो जल्दी फास्ट। चलो अब फटाफट बताओ, पहला पैर करस्पॉन्डिंग एंगल्स का, ए के साथ में कौन है, ए के साथ करस्पॉन्डिंग कौन है, जल्दी बताओ। अब इस फिगर को मैं ऐसा करती हूँ, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ए के साथ में क्या है, ए सॉरी ए इधर है, 8 नंबर जो है वो ए है, तो यहाँ कौन सा है, ए के साथ में ये वेरी गुड, 4 की जगह कौन सा है यहाँ पे, वेरी गुड, कौन सा है, ई, वेरी गुड, ए के साथ में ई है, तो एंगल ए एंड एंगल ई, ये पहली जोड़ी हो गई। दूसरी जोड़ी बोलो जल्दी फास्ट, ए के साथ में ई हो गया,
अभी यही देखो 5, 5 की जगह पे क्या है यहाँ पर? बी हाँ, तो बी के साथ में कौन सा है? बी के साथ कौन सा है? वेरी गुड, वेरी गुड। बी के साथ कौन सा है? एफ। एंगल बी एंड एंगल एफ, ठीक है? एंगल बी एंड एंगल एफ, ठीक है? नेक्स्ट कौन सा है? एंगल, ये अगर मैं लेती हूँ एंगल डी, तो उसके साथ कौन सा है? डी के साथ वेरी गुड। डी के साथ कौन सा है? एच। तो एंगल बी एंड एंगल एच, तीसरी जोड़ी हो गई। चौथी जोड़ी कौन सी आएगी? एंगल 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 जी वेरी गुड, एंगल जी, वेरी गुड। एंगल सी एंड एंगल जी, ये हो गई हमारी चौथी जोड़ी। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की हमारी ये 4 जोड़ी हो गई। ध्यान में बैठा? बिल्कुल इस तरह से कलरफुल बनाएंगे। मुझे सबकी नोटबुक में कलरफुल दिखना चाहिए। हाँ, अलग अलग कलर का इस्तेमाल करके करेंगे तो ही तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठेगी, ठीक है? तो इस तरह से आपको करना है। और नीचे आप लोग इस तरह से अलग अलग बना के भी बताएंगे कि एंगल डी के साथ में एंगल एच कैसे है, एंगल ए के साथ में एंगल ई कैसे है। हाँ, ये अलग अलग जैसे मैंने यहाँ नीचे बताई हो ना, ऐसा, ठीक है? इसलिए एक पेज के ऊपर एक ही रहेगा, एक पेज के ऊपर एक ही रहेगा, ठीक है? अब अगला जो है वो क्या है? एक हमने बताया ऑल्टरनेट एंगल्स, सॉरी इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल बताया। उसके बाद हमने ये करस्पॉन्डिंग एंगल बताया। अगला कौन सा हमको बताना है यहाँ पर? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल यानी कौन सा? इंटीरियर एंगल यानी कौन सी फिगर है? सी बनेगा, है ना? अब हम लोग फिर से ये वाली फिगर बनाते हैं जो तुम्हारे किताब में बनी हुई है। यहाँ पे ए बी सी डी, फिर ई एफ जी एच, हो गया। अब हमको कौन से एंगल बताने हैं? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? अब इंटीरियर एंगल्स की कितनी जोड़ी होती है? हाउ मेनी पेयर्स? 2 पेयर्स। अब फिर इसको मैं घुमाती हूँ ऐसा, देखो यहाँ पे 4 है, वैसा कौन सा एंगल है यहाँ पे? 4 की जगह 4 की जगह बी है। ध्यान से देखो, ध्यान से, 4 की जगह कौन सा है? ई। वेरी गुड। 4 की जगह क्या है? ई है। बी नहीं है, ई है। ई। और 5 की जगह कौन सा है? बी। ओके, सो इंटीरियर एंगल हम लोग यहाँ पे अभी बनाएंगे। यहाँ पे आप लोग ऐसे अलग से फिगर बना के बताना। हाँ, जैसे मैंने अभी पहले 2 इसमें नहीं बताई, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। यहाँ पे हमने बताया एंगल ई और एंगल बी, यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी एंड एंगल ई। आपको आंसर इस तरह से लिखना है फिगर बनाकर। ये एक जोड़ी हो गई। दूसरी जोड़ी कौन सी है? ये 6 की जगह कौन सा है? हाँ, 6 की जगह कौन सा है? सी। और 3 की जगह क्या है? एच। दूसरी जोड़ी हो गई यहाँ पे हमारी इंटीरियर एंगल की।
C and H। तो लिखेंगे एंगल C एंड एंगल H। आप इस तरीके से करोगे ना, जैसा ये पहले फिगर बनाने की, फिर यहाँ नाम लिखने का इंटीरियर एंगल, फिर यहाँ फिगर बनाओ और फिर जोड़ी का नाम लिखो, फिगर बनाओ जोड़ी का नाम लिखो। ये दो पहले जो हमने किए इसमें भी आप ऐसे ही करना। यहाँ पे हमने फिगर नहीं बनाए थे, यहाँ पे भी आप फिगर बनाओ तो आपके दिमाग में एकदम परमानेंट बैठ जाएगा। हाँ, यहाँ पे हमने फिगर नहीं बनाए थे, यहाँ पे हम लोग फिगर बनाएंगे। एंगल C और एंगल, यहाँ बताएंगे हम लोग, एंगल C और एंगल E। देखो कितना साफ तौर पे एकदम दिमाग में बैठ जा रहा है ना, है या नहीं? Yes, miss. Yeah. एंगल यस मिस। एंगल B और एंगल H एकदम दिमाग में बैठ जा रहा, देखो ऐसा करने से। Yes, miss. उसके बाद में पहला जो बताया हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स के भी चारों का बताओ। ये वाला पहला था, पहले की फिगर ऐसे बताओ, एंगल A और एंगल E। ठीक है, उसके बाद में दूसरे की फिगर, सेकंड की फिगर, एंगल B और एंगल F। थर्ड की फिगर, एंगल D और एंगल H। और फोर्थ की फिगर, एंगल C और एंगल G। अब देखो कितना वाज़ेह, एकदम वाज़ेह तौर पर मालूम पड़ रहा है ना। यस मिस। ये C यस मिस। और ये आप लोग ऐसा ऐसा करके नहीं बनाना। हाँ, आप लोग वो सही से एक नाम लिखना और वैसे करना। यस मिस। आप लोग ये लिखने के बाद ये फिगर बनाना, ये लिखने के बाद ये फिगर बनाना, ये लिखने के बाद ये फिगर बनाना, ये लिखने के बाद ये फिगर बनाना। ठीक है? यस मिस। और ऊपर ये वाली ऐसे यस मिस। यस मिस। ठीक है? तो पूरा अच्छी तरह से एक्सरसाइज समझ में आ गई आप लोगों को। यस यहाँ पे मिस। हमारी ये यस एक्सरसाइज, मिस। यहाँ पे Yes, हमारी miss. एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो, कोई चीज बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान में बैठा, एकदम अच्छे से ध्यान में बैठा। यस मिस। वेरी गुड। यस मिस। ओके, तो हमारा लेसन यहाँ पे खत्म होता है। आप लोग होमवर्क करके मुझे भेजेंगे ये सारा व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, मैं चेक करके आप लोगों को भेज दूंगी। तो इस तरह से हमारा ये लेसन, सॉरी ये एक्सरसाइज हमारी जो है वो कंप्लीट होती है। किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? नो मिस। नो मिस। हामिद समझा? हामिद? नो मिस। हामिद समझा? यस मिस। पूरा अच्छे से? यस मिस। वीडियो ऑन करो तुम्हारा। लाड़े से समझा? यस मिस। यस मिस। अच्छे से समझा लाड़े सा? यस मिस। ओके, पूरा मुझे भी समझा।
ओके, अभी होमवर्क करके भेजेंगे सब लोग। और जो लोग अभी आज नहीं ज्वाइन हो पाए, मैंने पूछा तो उन लोगों का किसी की बैटरी खत्म हो गई है, किसी का नेट नहीं है, हाँ, इसलिए उन लोग नहीं ज्वाइन हो पाए, तो उन लोगों को आप लोग हेल्प करेंगे, ठीक है? Yes, miss. या यूट्यूब पे जाकर देखने बोलो, ठीक है? चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।